Hello everyone. So today in this video we will be discussing few questions from APPSC 2013 General Studies. Yes, the pattern has been changed, but you never know. The questions can be asked from any corner, and few questions which are conceptual in nature may be asked. So let's start. Question number 1. The President of India is elected by a proportional representation system through single transferable vote. This implies that option A, MPs and MLAs of different states have different number of votes. ये बात गलत है. हाँ, हर स्टेट का MLA का वोट अलग अलग होता है, वोट का वैल्यू इनफैक्ट. फॉर एग्जांपल एक यूपी का MLA का वोट का वैल्यू इट्स अराउंड 208, वेरेज हमारा स्टेट का एक MLA का वोट का वैल्यू जस्ट 8 होता है. बट MPs का हर MPs का वोट का वैल्यू सेम होता है. सो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग बिकॉज MPs का सेम रहता है एंड MLAs का डिफरेंट रहता है. ऑप्शन बी, ईच इलेक्टेड MP एंड MLA हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ वोट्स. ये गलत है. जैसे मैंने कहा था MPs का येस इक्वल रहेगा बट MLAs का इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट्स. ऑप्शन सी, MPs एंड MLAs ऑफ ए स्टेट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वोट्स. गलत, ये भी गलत. ऑप्शन डी, ऑल MPs एंड MLAs हैव वन वोट ईच. ये सही है. इन राइटिंग येस MPs एंड MLAs का पास एक ही वोट रहता है. ये बात अलग है कि उनका वोट का वैल्यू अलग होता है, बट एज आई सेड अर्लियर कि दे हैव ओनली वन वोट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ which one among the following is a function of the protem speaker of the लोक सभा. तो प्रोटम स्पीकर सभी को पता होगा क्या है, हु इज़ प्रोटम स्पीकर या तो उसका प्रोविज़न क्या है. तो लेट्स गो विद ऑप्शन ए, स्वेयर इन द मेंबर ऑफ एंड होल्ड द चार्ज टिल ए रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड. बिल्कुल सही. ऑप्शन बी, कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर. नो, इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर विल टेक प्लेस, इसनट इट. और अगर डिप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट होगा तो उसका जो कमिटी एक बनता है वो डिसाइड करता है. ऑप्शन सी, टू चेक इफ द इलेक्शन सर्टिफिकेट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस आर इन ऑर्डर. ना, ये गलत. ऑप्शन डी, गिव्स हिज असेंट टू द बिल्स पास्ड बाय द हाउस. गलत. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस केस. ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, which of the following articles of Indian Constitution ensures freedom of press in India? Freedom of press is expressed in Article 19. Article 19 बताता है कि right to freedom of speech and expression. So Article 19, that is option D is the right answer. Article 356 तो emergency provision है, president rule. Article 22 is like protection against arrest and detention. Article 327 is related with some election procedure. So option D is the right answer. Question number 4, the National Commission for Women was created by. Option A, an amendment in the Constitution of India. गलत, कोई amendment नहीं किया इसके लिए. Option B, an act passed by the Parliament. Yes, ये क्या था. C क्या है, an order of the President of India. No. D क्या है, a decision of the Union Cabinet. गलत. D means अगर decision of the Union Cabinet means it's an executive decision, isn't it? लेकिन the National Commission for Women जब ये बना था तो it was an act passed by the Parliament. Basically it's an statutory body. But ये ध्यान देना कि it's non constitutional, but it's an statutory body. And इसमें दूसरा important चीज़ क्या है कि ये National Commission for Women it was created in the year 1992, 31st January to be very specific. हम लोगों को लगता है कि National Commission for Women बहुत पुराना है, but in fact it's very recent in origin, no? And the present chairman of this commission is रेखा शर्मा. तो एग्जाम में पूछ भी सकता है, ध्यान देना, रेखा शर्मा. क्वेश्चन नंबर 5, who among the following is the longest serving chairman of the Rajya Sabha? Whenever we say chairman of the Rajya Sabha, it basically means the vice president of India, isn't it? तो when we were writing this exam, उस समय आंसर था सी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण. बट राइट नाउ इफ यू अगर एग्ज़ाम में आता है तो यू हैव टू राइट टिक मार्क दी अमित अंसारी. आंसर वुड बी दी अमित अंसारी. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछ रहा है द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इज. लिंग्विस्टिक बेसिस मीन्स भाषा के आधार पे. तो आंसर इज सी, आंध्र प्रदेश, इन द ईयर 1953. Question number 7.
Article 24 of the Indian Constitution prohibits employment of children in any factory below the age of, answer is very easy, B, 14 years, isn't it? Question number 8, the first election commissioner of India was, this is also very factual, answer is A, Sukumar Sen. Question number 9, who is the chief law officer of India? मतलब इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है? तो आंसर इज सी, अटॉर्नी जनरल. बट अगर एग्जाम पूछेगा हु इज़ द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट, द आंसर वुड बी एडवोकेट जनरल. तो ये ध्यान देना, वेन एवर इट्स लाइक आस्किंग अबाउट स्टेट्स तब होता है एडवोकेट जनरल, बट सेंटर में बोलने से इट्स अटॉर्नी जनरल. सो इन दिस क्वेश्चन द आंसर इज सी, अटॉर्नी जनरल. क्वेश्चन नंबर 10, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ. तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कितना साल तक के लिए ऑफिस का कार्यकाल संभालते, तो आंसर इज सी, फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years और टिल द एज ऑफ 65. तो ये ध्यान देना कि इलेक्शन होता है 5 साल का, इसमें डेट, लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका काम करने का टेन्यूर का होता है 6 years और 65 एज जो पहले आएगा. द अदर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज लाइक हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो आंसर वुड बी 3. एक होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड देयर आर 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर. तो इंडिया का अभी प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलने से आंसर इज सुनील अरोड़ा. कभी कभी आ भी सकते हैं सुनील अरोड़ा. एंड द अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर आर अशोक लवासा एंड सुशील चंद्रा. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आ भी सकता है. Question number 11, who said that state is an organ of class rule, an organ for the oppression of one class by another? Okay, ये तो कोई याद नहीं रख सकेगा, but answer is Karl Marx. Karl Marx basically was a German philosopher. Question number 12, who said that the development of art and science has spoiled man? तो ये भी वही है, बहुत तो सोशोलॉजी टाइप लग रहा है. द आंसर इज सी, रशिया बेसिकली ये स्विट्ज़रलैंड was a Genevan philosopher. तो इससे बहुत इंस्पायर्ड हुआ है कौन सा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो ये था आज के लिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 12. द अदर क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग इन सक्सेसिव वीडियोस. तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन स्टडिंग. वी विल मीट वेरी सुन. बाय.